A very good evening and welcome you all back to GIBS IRE Talk series. Ma'am, a very good evening. I hope you're able to see me now. Yeah, I'm able to see you. Okay, great, ma'am. Thank you so much. Pradeep sir, if you could make me and ma'am as a co-host, it would be great. And moving ahead, our mission is to spread awareness about innovation, research, and entrepreneurship by featuring distinguished speakers who share the knowledge and insights on the relevant topics. I'm Professor Sandeep Ansali from the team GIBS Business School, Bangalore, and I'm really honored and privileged to moderate this IRA talks. Before we proceed, let me give you a brief introduction of GIBS Business School, Bangalore. GIBS is committed to creating an environment where talents are nurtured, ambitions cherished, ideas shared, and dreams fulfilled. We offer a wide range of extracurricular activities and programs, including postgraduate program in innovation, research, and entrepreneurship, a finishing school, business mastery program for both BBA as well as PGDM students, to help them develop their leadership skills, network with professionals, and to contribute with communities. Our goal is to produce well-rounded individuals who can make a positive impact in the world. Today, I am thrilled, and the entire family of GIBS has been thrilled to have Ms. Vibha Rani as our keynote speaker for today's topic, that's creating a growth mindset, harness the power of positive thinking to achieve success. I'm sure this talk would promise to be insightful and inspiring. We are honored to have this opportunity to learn from Vibha ma'am's expertise and gain new perspective on this topic. Miss, I would love to take this initiative, and it's my opportunity to introduce Vibha ma'am. She is a well-known celebrity in a lot of domains. She's a motivational speaker, a writer, translator, playwright, film, theaters, actor, folk presenter, and initiator of Avitoko Room Theatre and a cancer fighter. She has been written 37 books, in which includes the short stories, plays, folk tales, satire, translation, and many of her works are compiled in various books and have been translated in Marathi, Gujarati, Odia, Telugu, Bangla, and many more languages. She has bagged more than 30 awards for her contribution in literature, theatre, and social work. Films, serials, web series in which she has acted are Lal Kaptan, Unwanted, Monsoon Football, Samshera, Maharani 1, Taza Khabar, Eklavya. She is a veteran solo theatre practitioner and approved radio voice. In addition to this, she has her impressive list of accomplishments. Ms. Vibha Rani is also known for her dedication in social work and community building and work with jail inmates. She is an active member of Avitoko, a multi-purpose organization that focuses on empowering marginal communities through education and development. Ms. Vibha has organized a lot of workshops, training programs, and interventions aimed at promoting cultural diversity and at the same time the social inclusion as well. So Ms. Vibha's passion for the arts and literature is also evident in her work as a translator, bringing important work of literature to the new audience in her native Maithili language. With her many talents and commitments to social justice, she is a true inspiration for a lot of them. Before we proceed further, I would request all our participants that there will be a Q&A session at the end of this session of this IRE talks. Please feel free to post all your questions so that we can take the Q&A at the end of the session, and we'll try to address the best of our possible time. Basically, ma'am is from Mumbai. And before we begin, ma'am, I want to understand, if you could turn on the camera, it would be really great. Thank you so much, ma'am. Ma'am, you're on mute. Hi. Hello, ma'am. Yeah, I'm audible. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay. So, yes, ma'am. Before we begin, I think there's some technical issue. Just give me a right one moment, ma'am, please. Yes, I'm back. Thank you so much. So, ma'am, it's really an honor to have you amongst us today.
And before we begin on our topic, straight away jumping to our topic, I would love to understand few things and would love to ask you a moment that how is it about this such an inspiring journey you had? And if you could put some highlights and insights on your experiences that led from where you were to where you are today. I'm sure you are a big time celebrity. For all those people who don't know, you can just put Viva Ma'am's name in the Google. I'm sure there are a lot of articles which you come across, and you have been a true inspiration. So I would love to know more about your story, ma'am. So first of all, my pranam to everyone, to you, Sandeep ji, and Amit, and all my participants who are here. And I'm very thrilled and very excited to be the part of this GIBS and its IRI talk. And let me confess that when I got your invitation, then I also searched what is the entire institution and what is IRI talk, and I went through a couple of talk also, and then I found that it is very encouraging and very inspiring. And I can say that you are not teaching your students, you are carving your students. And this carving means that it is a creation of a person within a person. And that creation and that creativity and that carving, somehow I have nurtured in me. And that nurture didn't come from me. It came from you, it came from my society, it came from the entire world. And I love to speak in Hindi, so please allow me to speak in Hindi, and in between I'll speak in English also, wherever it is possible or not possible or whatever. So coming on my journey, and I can't understand from where I can start my journey, because I am the youngest child of my parents. So अपने यहाँ हमारे यहाँ होता है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है. तो I was also eyeball of especially my mom, and she was very highly educated, and she was gold medalist for the year 1936. And today we are talking about the placement, and she got her placement that time. That was also from the British government. So I am the child of that kind of great lady, and she was expert in all the field. Forget about mathematics, science, arts, history, geography, and anything. Is a globe. Especially I was very much fascinated with her. Whenever if I say where is Uganda, so she used to tell me कि अच्छा वो ग्लोब लेकर के आओ, अच्छा देखो जरा ऊपर जाओ, अच्छा जरा नीचे आओ, जरा दाएं जाओ, जरा देखो वहां पे होगा यहाँ कहीं. और फिर हमें लगता था कि हाँ वहीं पे वो कंट्री हमें मिलता था. तो ये जो एक फोकस और ये एक स्टडी, ये मुझे अपनी माँ से मिला. बहुत सारी चीजें आमतौर पर बच्चे अपनी माँ से इनहेरिट करते हैं, मैंने भी किया, लेकिन उससे ज्यादा मेरी माँ को के ऊपर जो प्रेशर आया सोसाइटिकल, वो प्रेशर मेरे ऊपर भी आया. और मेरी माँ ने समहाउ बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है, टाइम गैप होता है, एंड समहाउ टू समवेयर शी हैड सरेंडर्ड. समहाउ I did agree with her surrender, and उसके बाद मैंने उसको कहा कि नहीं, कुछ हद तक तो मैंने भी सरेंडर किया. Like my study, I wanted to study in JNU, Jawaharlal Nehru University, and I was told that you are from such a small person, because I belong to Madhubani. That is a very, those time, it was a subdivisional town of Bihar. Now it is a district town. And that is very famous for Madhubani painting nowadays. It is worldwide famous. So I belong to that place, and I was told, no, you cannot survive in the city like Delhi. And I was not given the permission. I wanted to become an air hostess, and I was told that, which you might have heard in or listen in my Josh talk also, कि I wanted to become an air hostess. और मुझे कहा गया कि अच्छा अपनी शक्ल देखी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अकल से ज्यादा शक्ल महत्वपूर्ण होता है. और उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं डांसर बनूंगी, कथक डांसर बनूंगी. तो वो भी कहा गया कि नहीं, सोसाइटी क्या कहेगी. हमने कहा कोई मैं क्लासिकल सिंगर बनूंगी. फिर हुआ कि सोसाइटी क्या कहेगी. एंड इन दिस वे
the destiny of a girl. Even just yesterday, I was talking to a girl in Indore, and she's a 25 years old girl, and she also told me she wanted to become a model, but her parents didn't allow her. तो मुझे लगता है कि हमारी जर्नी उस समय जहाँ शुरू हुई, और आज भी, my mother wanted to become a doctor, an MBBS doctor, but she was not, by the time she got married, and she was not allowed by my parents, or my parents, or my by her in-laws. I can see कि मेरे दादा दादी ने उनको अलाउ नहीं किया. और आज भी अगर एक 25 साल की लड़की और 27 साल की लड़की ये कहती है कि उसे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हमें लगता है कि हम अभी भी वहीं के वहीं हैं. एंड व्हाई वी आर स्टिल एट दैट प्लेस ओनली. हम बाकी सारी चीजों में, हम आज छुट्टी के नाम पे, वेकेशन के नाम पे सिंगापुर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हर जगह जाते हैं, बट व्हाई वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग आवर माइंड, आवर थॉट. यहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, नाउ whatever the circumstances, there are two way: either you give up or you take it. I thought कि let me take it. अगर मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ कितनी दूर चलूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाऊंगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, लोग हंसेंगे. तो लोग तो ऐसे ही हंस रहे हैं मेरी शक्ल देख करके. आज भी मैं जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो लोग मेरी शक्ल देख के हंसने लगते हैं. मैंने कहा ठीक है, मुझ पर नहीं हंसते. एक बहुत बड़े बड़े पहले किसी सूफी ने कहा था, और सूफी ने भी नहीं कहा था, बल्कि हम ये कहें कि राजा, मैं तो मिथिला से हूँ, और मिथिला के राजा जनक थे, जिनकी बेटी सीता थी, जिनके दामाद राम थे. तो उनके यहाँ अष्टावक्र ऋषि आए, और अष्टावक्र उनके नाम से ही, कि उन अष्टावक्र मतलब 8 दिशाओं से वो वक्र मतलब तिरछे थे. तो मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी. तो व्हेन ही रीच्ड इन द कोर्ट ऑफ राजा जनक, तो सारे लोग उनको देख के हंसने लगे. तो उन्होंने वो कहा कि तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, तुम मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो. मैं जो मुझे तुम्हें भी उसी ने बनाया है, और मुझे भी उसी ने बनाया है, तो तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो, उस पे हंस रहे हो. और ये देखिए कि जो अष्टावक्र के समय में हुआ, वो आज भी हम उस बॉडी शेमिंग को लेकर के चल रहे हैं. तो हमें लगता है कि हम बदले कहाँ हैं. अगर हम इतनी सारी चीजें, हम वर्ल्ड लेवल एजुकेशन, वर्ल्ड लेवल अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड लेवल जॉब, वर्ल्ड लेवल सारी चीजें देने का हम प्रोसेस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और स्टिल यहाँ से हम शायद कहीं ना कहीं हम लैक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं. मुझे लगा कि ये चीजें हैं, अब ये हैं. मैं अपनी शक्ल चाह करके भी मैं किसी खूबसूरत, मैं मोनालिसा नहीं बन सकती, या मैं उर्वशी, रंभा, मेनका मैं नहीं बन सकती. लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करके मैं कुछ बन सकती हूँ. एंड माइंड इट कि इसके बावजूद आप चाहे बहुत शार्प हो, ये दुनिया, मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि दुनिया बहुत अच्छी है, तो ये दुनिया बहुत क्रूर भी है, बहुत क्रूएल है, बहुत क्रूड है. वो कभी भी आपके अच्छे पर आपको शाबाशी पहले बाद में देगी, पहले लेग पुलिंग करने के लिए सबसे पहले वो आती है. तो यहाँ पर यह कि आज भी जब भी मैं कभी कहीं जाती थी और कुछ भी किया, तो लोगों का सबसे पहला रिएक्शन ये होता था कि लुक एट हर, लुक एट हर, ये पहला रिएक्शन है. अब ये लुक एट हर, तो मैं फिर से वही अष्टावक्र की बात करूंगी कि यू आर नॉट लुकिंग एट मी, यू आर लुकिंग एट टू द क्रिएटर. तो अब ये है कि चाहे हमारा इस क्रिएटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ दिस क्रिएटर इज वेदर अ सुप्रीमो हु हैज मेड अस, और हम आज इस धरती पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट आवर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस. तो अब मेरे लिए ये होता है, और मैं चाहती हूँ कि वहां पर हम कैसे ये करें कि जहां हमारे बच्चे, जिनकी आंखों में सपने हैं, जो आए हैं, जिनके पेरेंट्स की आंखों में सपने हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, और अपने उस सपने के साथ अपनी सारी जरूरतों को, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और उससे भी ग्रास रूट फैमिली से भी आते हैं. तो उनकी आंखों में, उनके पेरेंट्स और बच्चे की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रीम होता है कि यस, आई शुड बी समथिंग. अब इस आई शुड बी समथिंग में ही और शी gives his or her full time energy, zeal and everything
to to explore each and everything from the organization. जो उनका पेरिफेरी है, जो उनका टाइम फ्रेम और सिलेबस फ्रेम है, उसमें से वो लेना चाहता है. बट in spite of that, like me, like any other person, और अगर वहां पर उसे ये लगता है कि उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उसका निराश होना या उसका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना बहुत ही नेचुरल होता है. और वो फ्रस्ट्रेशन कब होता है? तब और ज्यादा होता है क्योंकि ठीक है, मैं अगर पढ़ नहीं पाई, मैं अगर 90% नहीं लेकर के आई, 60% लेकर के आई, तो इट डजंट मीन कि आई एम डिस्कार्डेड. मेरा एक फील्ड में एवरीबडी कैन नॉट बी द एक्सपर्ट ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड. मेरा अगर एक फील्ड में मेरा यूएसपी है, तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है. I may be very expert, very good in mathematics, but I may be very, very weak in history. I may be very weak in social sciences. I may be very weak in intrapersonal relationship. और इस इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप की कमी के कारण हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. और खास करके ये जो पैंडेमिक आया है और जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई सोशल डिस्टेंस, तो ये लगा कि सोशल डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द सोशल डिस्टेंस? सामाजिक दूरी बनाए रखें. अरे समाज की सामाजिक दूरी ही आप बना लेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे? क्योंकि हमें तो कहा गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल. तो जब हम सोशल एनिमल हैं, तो बिना सोसाइटी के हम कैसे रह सकते हैं? तो हमें अपना हर काम उस सोसाइटी के सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में ही करना होता है. अब मैंने जब अपने आप को उस हिसाब से देखा, और शुरू में मैंने देखा कि अच्छा, मुझे किसी भी चीज की इजाजत नहीं मिल रही है. आई कैन नॉट बी एन एयर होस्टेस, आई कैन नॉट बी अ डांसर, आई कैन नॉट बी अ सिंगर, आई कैन नॉट बी अ स्टूडेंट ऑफ JNU लाइक इंस्टीट्यूशन. तो फिर मैं क्या करूं? I cannot be given the permission to stage, to play. और तो फिर मैंने कहा कि मैं करूं तो क्या करूं? Then मेरे पास फिर से, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं छोड़ दूं, या मैं उसी में से मैं कुछ एक थ्रेड निकालने की कोशिश करूं. एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वाटर, जस्ट वाटर. एंड वाटर को, पानी को आप कभी भी रोक करके नहीं रख सकते हैं. आप इधर से बंद करेंगे तो पानी उधर से निकल जाएगा, आप इधर से करेंगे पानी का फ्लो उधर जाएगा. तो आई मेड माई सेल्फ लाइक वाटर. हमने कहा ओके, ये सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं, देन लेट मी फाइंड इट आउट व्हाट आई कैन डू टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड देन आई थॉट कि ओके, there is wonderful way to express myself without hurting anyone, without troubling anyone, without giving giving any shameful so-called shameful condition to or situation to anyone. I started writing. Then I started writing poems, then short stories, plays, and novels. Then I started, my mother tongue is Maithili, and then I started writing in Maithili. फिर उसके बाद मैंने मैथिली के जो अच्छे राइटर्स हैं, और फिर मुझे लगा कि मैथिली के अच्छे राइटर्स हैं, उनका हमारा लिटरेचर इतना वास्ट और इतना रिच लिटरेचर है, जो जिसको हम ऐसे आज भी हम कहते हैं कि विद्यापति से शुरू हुआ है 14th सेंचुरी से, लेकिन उसके पहले 18th सेंचुरी में मल्लिनाथा और गोरख जो थे, तो उनकी तरफ से, वहां से हम इस कल्चर को मानते हैं. और आज हमारे पास बहुत से मॉडर्न राइटर हैं और विमेन राइटर हैं. राइट फ्रॉम मॉडर्न राइटर में हम कहें कि लिली रेटो, उषा किरण खान, और विभा कुमारी, and so many writers are there, शारदा झा, so many writers are there. तो हम उनको कैसे लोगों के सामने लेके आ सकते हैं? Then I started translating their work into Hindi. और उसके बीच मैं अपनी राइटिंग हिंदी और मैथिली दोनों में मैं कर रही थी. मैंने उसमें ये पाया कि हाँ, एक जो चीजें हैं कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो दैट नाउ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. सेकेंड थिंग कि अब इसमें मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे तो अभी थिएटर करना है, मुझे रिहर्सल के लिए जाना है. ओके, यू आर नॉट अलाउड टू गो. मैं अभी इसके बाद मुझे कोई टाइम का ये नहीं है. आई कैन गेट अप एट 2 o'clock in the night and I can write. 4 बजे भी मैं, और मैं वही करती थी.
बाद में जब मैं यहाँ बॉम्बे आई, और बॉम्बे में उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक मैगजीन वहाँ की निकलती थी, धर्मयुग, और धर्मयुग वो वीकली मैगजीन होती थी, और वहां से मुझे असाइनमेंट मिलते थे। और वहां उस समय मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, और उस समय मैं उसे सुला के, मैं जॉब करती थी, तो आई यूज टू गो एट लीव हाउस अराउंड 7:40-45 एंड कम बैक अराउंड 7:30, देन कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, और उनको पढ़ाना रहना, ये जो कुछ भी है वो कर वर करके आई यूज टू फ्री एट 10:30-11 o'clock। मैं उसमें बच्चे को सुला करके देन आई ऑल्सो यूज टू टेक अ लाइट नैप, और फिर उसके बाद 2 बजे उठ करके 2 से 5 बजे तक मैं लिखती थी। तो ये लिखना, ये चीजें, ये है। और फिर उस समय ये वो जमाना था जब उस समय हमारे पास कंप्यूटर में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी, टाइपिंग की भी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम हाथ से लिखते थे। तो पहले हाथ से लिखा, 2-3 उसके ड्राफ्ट बनाए काट पीट करके, और उसके बाद फिर एक फाइनल लिखते थे। अच्छा, कॉपी भी अपने पास रखनी होती थी, जीरोक्स की बहुत फैसिलिटी नहीं थी, फैसिलिटी थी बट बहुत फैसिलिटी नहीं थी, तो हम कार्बन पे लिखते थे। कार्बन पे लिख के ओरिजिनल कॉपी हम प्रेस में देते थे, और कार्बन कॉपी अपने पास रखते थे अपने रिकॉर्ड के लिए। तो वहां से वो सारी चीजें थी, लेकिन it gave me an immense satisfaction and sense of achievement. Yes, I am something, I am expressing myself, and I have my own say. क्योंकि मैं अगर आर्टिकल लिख रही हूँ तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, वॉट एवर द आर्टिकल आई एम राइटिंग, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, अर्लियर आई वाज इन दिल्ली, तो दिल्ली हिंदुस्तान टाइम्स की मैगजीन थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, एंड द ग्रेट journalist and writer Mrinal Pandey ji, she was the editor of that time. She had given me lots of assignments कि आप तो मुंबई जा रही हो तो जाओ वहाँ मंटो पर, सादत हसन मंटो पर कवर स्टोरी करके आओ, एडवर्टाइजमेंट पर कवर स्टोरी करके आओ, मॉडलिंग पर कवर स्टोरी करके आओ, और वो सब सारी चीजें मैंने वो वहां से की, और वो सब करके वो दिया। तो ये जो पूरी राइटिंग की एक जर्नी थी, दैट राइटिंग की जर्नी धीरे 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 मेरे सारे ब्रेन्स, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ की सारी चीजों को उसने खोलना शुरू किया। और एक चूंकि हमारी अपनी जर्नी थी कि जहाँ एक मैं मधुबनी जैसी जगह से थी, वहां से निकल करके देन आई फर्स्ट आई स्टेप इनटू कोलकाता, दैट टाइम इट वाज कलकत्ता, देन दिल्ली, देन मुंबई, देन आई वेंट टू चेन्नई, देन अगेन केम टू मुंबई। सो आज की जो, जिसको कहते हैं ना कि पहले चारों धाम की यात्रा, तो मॉडर्न चारों धाम वो मैंने कर लिया है। So every place's experience or meeting the people I like very much. That is why I told Kik, why you are giving me this opportunity for webinar, call me there, and I would be very happy to meet, and directly meeting and greeting and cheating and chatting and everything and meeting the people. So लोगों से मिलना और लिखना, ये दोनों ही चीजें हमें, खास करके मुझे, उसने मुझे बहुत प्रॉस्पर किया, बहुत समृद्ध किया। एंड उसके बाद धीरे 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 धीरे, चूंकि मेरा अपना बचपन से एक मेरी अपनी इच्छा थी, आपको सुन के हंसी भी आएगी, बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं कहीं किसी न किसी लाइमलाइट में रहूं। हालांकि आपने मुझे सेलिब्रिटी कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बट आप जैसे लोगों की तरह ही मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। बट मुझे हमेशा लगता था कि मैं जहां भी हूं वहां मैं कहीं ना कहीं रहूं और दिखूं लोगों को, मैं भीड़ में भी कहीं दिखना चाहती रहती थी। और उसके लिए मुझे लगता था कि हाँ, मैं गाऊं, मैं डांस करूं, मैं थिएटर करूं, मैं फिल्में करूं। आपको मैं जो बता रही हूँ कि वो बचपन में मैं जब फिल्म देखती थी, तो फिल्म पे जब पर्दे पे गाने आते थे कि छुप गए सारे नजारे, हुए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तो उस समय क्या होता था कि जो जो भी हीरो है, राजेश खन्ना हो कि धर्मेंद्र हो कि जो भी हो, वो तो रहते थे, हीरोइन वहां से मेरे मन के उसमें से हीरोइन गायब हो जाती थी, और वहां पे विभा रानी चिपक जाती थी। और मैं कल्पना करके देखती रहती, अच्छा ये मैं गा रही हूँ, विदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, ये सारे गाने मैं गाती थी। पर्दे पे, स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे मुमताज गा रही हूँ, शर्मिला टैगोर गा रही हूँ, वहीदा रहमान गा रही हूँ, बट एक्चुअली मेरे मन के स्क्रीन पे इट वॉज विभा रानी यूज्ड टू एक्ट। सो अब ये था कि मैं अपनी उन सारी चीजों को मैं कैसे फुलफिल करूं, कैसे ये करूं। तो देखिए, मन में अगर आपको एक संकल्प आपको बनाना होगा, आपको एक रेजोल्यूशन बनाना होगा कि यस, you are here to do something because you have given just this single birth, not before, not after.
अगर मैं पहले पूर्व जन्म जिसे कहते हैं, मेरा उस पे और बाद के जन्म पे और मेरा कोई उस पे यकीन नहीं है। और अगर मैं पिछले जन्म में कहीं कुछ रही भी होंगी तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या थी। आगे मैं कोई जन्म अगर लूंगी भी तो मैं आई एम 100% श्योर कि आई वुड नॉट बी विभा रानी। क्या होंगी मुझे? सो विभा रानी है सिंगल लाइफ। उसी तरीके से आप सबके पास वही और वही सिंगल लाइफ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको, जब आप एक किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, पढ़ते हैं या काम करते हैं, आपको अपनी एक पहचान बनानी आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि यस everybody is doing, like you are doing some finance business, so everybody is in finance department, okay, everybody is in HR. अगर HR team है तो there are 5-6 people, there are people are in HR team, but why one person is very near, very dear to everyone? कुछ तो बात होती होगी उसमें। हमें अपनी वो जो क्वालिटी है, जो वर्चूज हैं, that we have to work on us, on your own, on oneself. You have to, I have to work, और फिर वहां से निकाल करके हमें वो देखना होगा, जिसे हम कहते हैं कि नो योरसेल्फ बेटर। जो मैं हमेशा लोगों को, जो मेरे कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है, उसमें ये है कि नो योरसेल्फ बेटर। फर्स्ट यू विल नो योरसेल्फ बेटर कि यस व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन नॉट डू, देन आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ या जो मैं नहीं कर सकती हूँ मैं नहीं करूंगी, और जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, देन उसकी भी फिल्टरेशन करते करते आप ये कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी चीजों को फिल्टर किया, तो फिल्टर करने में जो भी मुश्किलातें आई, अब वो मुश्किलातें तो हैं, वो मुश्किलातें इस तरीके से हैं कि जैसे हम ये कहें कि सीमेंट में बालू की तरह है। केवल सीमेंट से बिल्डिंग नहीं बनती है, कंस्ट्रक्ट नहीं होता, आपको उसमें बालू मिलाना पड़ता है। अगर केवल उसमें रॉनेस नहीं रहेगी तो इट विल बी जस्ट लाइक अ ग्लास, एक कांच ऑन विच यू कैनॉट वॉक। वॉक करने के लिए आपको जमीन भी आपकी खुरदुरी होनी चाहिए। और उसी तरीके से लाइफ में वो निगेटिव एंगल जिसे हम कह सकते हैं, वो सारे खुरदुरे चीजें जो है, थोड़े ईंट पत्थर कंकड़, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। केवल मीठा खाएंगे तो आपको शुगर होने के ज्यादा खतरे हैं, तो इसलिए थोड़ा करेला भी आपको खाना पड़ेगा। तो ये खाने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। हमारे भीतर, हमारे यहाँ जो हमारा मिरर है, यहाँ जो हमारा थॉट का मिरर है और यहाँ हमारे फीलिंग्स का मिरर है, वो फीलिंग्स एंड इमोशंस को आपको चर्न करना होगा। उस चर्न करने के बाद फिल्टर करके देन यू विल हैव टू फाइंड आउट, और यू विल फाइंड आउट, यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। वो मिल जाता है, खुद से मिलता है या किसी से डिस्कस करके मिलता है, किसी से सलाह करके मिलता है, बट यू विल गेट इट। आई गॉट कि ओके ठीक है, दैट टाइम आई कैन नॉट, तो मैं बनाया टू कोलकाता में। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेज अ प्ले। देन वहां पर आकर के हमने वहां पर 2-3 प्ले की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट किया, शिवमूर्ति जी हैं हिंदी के बहुत बड़े राइटर, उनका एक नाटक कहानी थी कसाई, जैसे बाद में नाटक के रूप में आया, और उसको हमने किया। और द एंटायर बंगाली कम्युनिटी, their Bengali community, they are very proud of their culture, their language, their wisdom, their knowledge, their everything. And they came to watch our play कि अरे हिंदी वाले लोग कुछ नाटक वाटक कर रहे, जरा देख करके आते हैं. And when they saw our performances, or especially my performance, then the next day they came and lots of people came and appreciated. तो कहने का मतलब, उसके बाद then I came to Delhi again. I shifted, and then I got one of my theater director, who carved me, I can see, who carved whatever today I am because of him and because of my another theater director. He carved me. He's taught me how you can act, how you can not acting, how you will express yourself. That expression is an acting, and that expression every time we express. हम अपने अपने क्लास में है, कॉलेज में है, क्लास में बैठे हुए हैं और मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे ऐसे करते हुए अपने देख रहे हैं कि कोई जो मेरा जो दोस्त है, पक्का दोस्त है, उसकी मेरे से नजर मिले, और नजर मिलती है और हम ऐसे कर देते हैं. दैट इज एक्टिंग, एंड दैट इज आवर कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप.
तो वो जो सारी चीजें होती हैं वो हमें पहचाननी होती। तो वहां से फिर मैंने वहां थिएटर किया। Then I moved to Mumbai, and then my entire situation got changed. I was alone. I had my small baby. Then my husband joined me. Then we got another baby. So now two babies usko dekhna, and my job was a very very challenging job, and it was a government undertaking, and it was a touring job. सो महीने में 10 दिन तो हमें कम से कम जो है वो टूर करना ही पड़ता था, आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ। तो बट अब इन टूरिंग जॉब में how I will teach my children, how I will keep my writing and my hobbies and my passion also intact, that was, तो उसके लिए मैंने अपने I have created some tools, और मुझे कोई कहने में कोई शेम नहीं है, क्योंकि ये बहुतों को मैंने बताया है और बहुतों ने इसको करना शुरू किया है। कि मैं तब जब जाती थी और आती थी तो बस में बैठ करके, तो मेरे उस समय तब तो इतने फोन वोन होते नहीं थे, तो हमारे पर्स में हमेशा एक छोटा सा नोटबुक और एक पेन होता था। और मेरे मन में कुछ भी अगर वो आया तो मैं खिड़की पे बस में बैठी हुई हूँ, आई यूज टू टेक आउट द नोटबुक एंड पेन, और हिलती जा रही है बस, लिखने में राइटिंग जो है यहाँ वहां कहीं कुछ भी बन रहा है, बट आई यूज टू राइट। देन उसके बाद आई ऑल द टाइम क्राइसिस ऑफ टाइम, कि समय तो है ही नहीं, और औरतों के पास तो थोड़ा और ज्यादा कम समय होता है, तो इसमें वो सारी चीजें करने पे आई यूज्ड टिल डेट, whenever I go to washroom, I sit on commode, and not only till I get out and come out from the washroom, 10 minutes or 5 minutes or 7 minutes, sometimes I do some exercise. Sometimes I recall my dialogues. Sometimes I work with my expressions. Sometimes I work with, if I am directing some play, तो उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है. If I am writing something, तो यहाँ मैंने लिखा है उसको आगे कैसे करना है. If there is something coming in my mind कि हाँ ये कहानी मुझे लिखनी है, या नॉवेल मुझे लिखना है, या पोएम मुझे लिखना है, तो उसके जो सारे थॉट्स हैं, हम लोग मजाक में उसको शांति निकेतन बोलते हैं, तो ये रियल में शांति निकेतन है मेरे लिए. हम मजाक में उसे चिंतन गृह बोलते हैं, तो रियल में हमारे लिए वो चिंतन गृह है, और खास करके हम औरतों के लिए. तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, लोग कहते हैं कि हमें पर समय नहीं मिलता है, एंड आई टेल एवरीवन कि सी दिस 24 hours only has been provided by the nature to each and everyone. Not संदीप जी कितने भी प्यारे हों, लेकिन उनके बॉस भी उनको 24 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं अलॉट कर सकते हैं. इट इज नॉट इन एनीबॉडीज हैंड. तो अब हमारे लिए है कि हम 24 आवर्स को 48 आवर्स और 72 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करें. दैट इज आवर स्किल, एंड दैट इज आवर रेजोल्यूशन, एंड दैट इज आवर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट your own carving your own personality, person within the person, when you try to see your inner strength, then you will start working on it. और जब आप उस पे वर्क करना शुरू करेंगे, then you will find that yes, I can do. उसी 24 घंटे में किसी से एक भी काम नहीं होता है, और किसी से सबसे ज्यादा काम होता है. हम कॉर्पोरेट में थे, तो मेरी कॉर्पोरेट में मुझे सिखाया जाता था कि if you want to work get done, give it to the busiest person. वो अपना सारा काम करने के बाद भी वो आपका काम कर देगा, और यही होता था. और इसलिए वहां पे जहां मैं काम करती थी, मैं अपने जिस कॉर्पोरेट में मैं काम करती थी, वहां पे भी यही माहौल. हर जगह कॉर्पोरेट का तो एक ही कल्चर होता है, तो उस कॉर्पोरेट कल्चर को आप सभी जानते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन भी कॉर्पोरेट कल्चर के तहत है. आजकल तो हर चीज कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो वहां पे ये काम होता है, ये सारी चीजें होती हैं. और आपको उसी में से, फिर से मैंने कहा कि मैं अपनी मेरी जो चाहत थी, मेरा जो विश था कि मैं अपने आप को कहीं न कहीं देखूं. और वो कॉर्पोरेट में भी बहुत मुश्किल होता है, बट इतना भी असंभव नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता है.
उसी में मैंने वही कहा कि उसी अगर 10 लोगों की टीम होती है तो उसमें 2 बहुत विजिबल होते हैं। वो विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अपने अंदर उनका अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में और उनकी अपनी एक जिसे कहें कि अपने ऊपर एक काम होता है, और उस काम की वजह से आप आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है कि कई बार हम कह तो देते हैं कि हाँ काम होना चाहिए, आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको ग्रुप के साथ भी काम करना चाहिए, कि सेल्फ एंड ग्रुप, जो कॉर्पोरेट जब हम इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप बताते हैं, या फिर हम कम्युनिकेशन स्किल पे बात करते हैं, या किसी पर भी बात करते हैं, तो वन साइड इज माई ओन, आई एम द पर्सन, एंड अनदर साइड माई ग्रुप, the entire world, maybe entire world, or maybe my country, maybe my society, maybe my institution, maybe my family, everybody's group, and I have to deal with them, I have to interact with them. तो उनके साथ मुझे कैसे अपने आप को interact करना है। अब ये होता है कि चलो मैं तो बहुत अच्छा बन गई, लेकिन and I expect also कि दूसरे भी जो है वो उतने ही अच्छे बने। संदीप जी बहुत अच्छे हैं, तो संदीप जी ये भी चाहेंगे कि विभा मैडम भी उतनी ही अच्छी रहे, लेकिन अगर विभा मैडम उतनी अच्छी नहीं है, क्रैंकी नहीं है, तो विभा मैडम तो संदीप जी क्या करेंगे? तो ये वो सारी चीजें हैं कि यहाँ पर आना पड़ता है, और यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होता है। सी, आपको 4 सीढ़ियां चढ़नी है अपने घर पे, तो दैट इज ओके, बट इफ यू हैव टू क्लाइम एवरेस्ट, तो उसकी तैयारी दूसरी होती है। एंड व्हेन यू think, you determine कि like बछेंद्री पाल I have to also go to Mount Everest, then आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि बछेंद्री पाल कैसी थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उनका ये कैसा है, उनका वो कैसा है, नथिंग। पीटी उषा क्या है, पीटी उषा ये है, पीटी उषा वो है। आई स्टिल रिमेम्बर when Ishad was there, and when PT Usha was continuously giving us gold medal, gold medal, gold medal, and her on television she was portraying everywhere. And one of my relative, he said so shamelessly कि मन करता है कि इसके चेहरे पे उबलता हुआ पानी डाल दें। So I objected, हमने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? She is earning so prestige, so pride for our nation, and you are looking at her face. It means कि only face value, for face you are looking, और कुछ नहीं है आपकी नजर में। He was elderly to me, he was मेरे ससुराल के रिश्ते से थे, but I couldn't come. Somehow I saw myself in PT Usha. हमने कहा ऐसे ही मेरे लिए भी बोला जाता हो, और मेरे मुंह पे ही बोल दिया जाता था, बोल ही दिया, कह दिया जाता था, करे आपको आपके हस्बैंड ने कैसे पसंद कर लिया। या आफ्टर दिस जोश टॉक ऑल्सो मेनी कॉल्स केम, और सब लोग उसमें क्या पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, अच्छा तो आपके हस्बैंड ने आपको कभी कुछ नहीं कहा? मतलब ये हमारी चीजें, आप ये देखें कि हम कहते हैं कि फिल्मों में और इसमें, टेलीविजन में, इसमें उसमें क्यों लड़कियां जो हैं इतनी केवल बन ठन करके आती हैं और ये आती हैं, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं, हम वही देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमको मजबूरी में वैसे ही डॉल बना करके एक जो है वो बना करके हमें देना होता है। और अगर जब हम स्ट्रगलिंग वुमेन दिखाते हैं तो हम बिल्कुल एक अलग किस्म से उसको पोर्ट्रे करते हैं, फिर उसको कोई नहीं देखता है। मैं एक बार फिल्म देखने गई एक ही हॉल में, और वहां कौन सी फिल्म थी वो, द सीक्रेट सुपरस्टार, वो फिल्म थी, और उसके पैरेलल वो गोलमाल थी। गोलमाल ठसम ठस भरी हुई थी, और सीक्रेट सुपरस्टार में गिनती के लोग थे। और फिर हम कहते हैं कि अरे फिल्म वाले अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं। हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे, आप आइए हमें सराहने के लिए। वाई यू आर ओनली seeing our face, why you are not seeing our merits, our virtues, what we are doing, कि फाइनली वही रहेगा, खाना
काला हाथ बनाए या गोरा हाथ बनाए, बन के वही रोटी आएगी और वही रोटी आपका पेट में जाएगी और आपके भूख को खत्म करेगी, आपका पेट भरेगा। अगर कोई कुछ भी कह के बहुत सुंदर लोग ही बहुत सुंदर खाना बनाते हैं, बहुत सुंदर लोग ही बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सुंदर लोग ही बहुत सुंदर काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय। हाँ, वो आपको फेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल तो हर चीज एवरीथिंग इज मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए वो कुछ फेसेस वो बना के रखते हैं। तो बट एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो गिव अ थॉट कि वी आर हायरिंग फॉर व्हाट, फॉर गिविंग जस्ट अ फेस वैल्यू, कि वो जाकर के वो एक उसका फेस वैल्यू है तो हमारे लिए बिजनेस ले आया तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। बट बिजनेस ले आएगा तो बिजनेस ले आने के बाद उसको उस बिजनेस का जो आया आपके पास ब्रीफ केस, उस ब्रीफ केस को आपको अगर ठीक से संभालना नहीं आएगा तो वो फेस वैल्यू क्या करेगा। तो आपको वैसे लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, और अगर आप हायर नहीं करते हैं, इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। फॉरगेट अबाउट दोज पीपल। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज योर ग्रुप। सो एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप, व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और यही मैंने अपनी पूरी लाइफ में किया। वहां से बॉम्बे आने के बाद भी जब मैंने तो कितने साल तक मैंने वो 20 साल तक मैंने थिएटर नहीं किया, बिकॉज ऑफ माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली, माई चिल्ड्रेन, उनके एजुकेशन है, घर देखना है, सब कुछ देखना है। सो चैलेंजिंग जॉब कि 10 दिन हमें बाहर भी रहना है। दैट टाइम माई हस्बैंड ही यूज्ड टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिल करके आपको करना होता है। एंड आफ्टर दैट डोंट फॉरगेट योरसेल्फ कि अरे ऑफिस में अभी भी दिन रात, इवन यंगस्टर्स, आप सभी यहाँ तो चूंकि इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आई थिंक दैट कि most of the people or many of the people are must be youngster or students. तो students please remember, ये कभी मत कहिए कि समय नहीं मिलता है। समय मिलता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हाँ समय नहीं मिलता है, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सारे समय अगर हम कहते हैं कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो फिर तो आपको वॉशरूम जाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा और खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर ऑल्सो हैव टू गिव इट थॉट कि हम अपने एम्प्लॉय को किस तरह से हम दे रहे हैं। अब जब I'm just mentioning, just my daughter has gone to give some interview to some corporate and they were asking कि okay, when she was asking about the working hours, तो उसको कहा गया कि okay, so 9 okay day, मतलब it was not, they were very not clear, so they were not uttering very clearly कि what will be your working hours. Finally they uttered कि okay, it is 10 to 10. तो she told कि okay 12 hours. तो कहा कि yeah, it's 12 hours, but 1 hour for prior you will have to come and after 1 hour you will have to go. So then she told कि it means 14 hours. So then कि no, it is 12 hours. कि no, how can be? I will come, suppose it is 10 और you are asking कि 1 घंटा पहले आओ, तो इट मीन्स कि I'll have to come at 9 o'clock और 10 बजे खत्म होगा, 1 घंटे बाद जाओ, तो इसका मतलब है कि मुझे 11 बजे जाना है। तो 14 घंटे का आप वर्क शेड्यूल दे रहे हैं, तो दैट वर्क शेड्यूल इज नॉट acceptable on humanitarian ground, on human ground. It means कि what जो बंदा या बंदी जो इवन 20 साल का और 25 साल 30 साल का भी बच्चा रहेगा, उसकी लाइफ तो रुइन हो गई। उसकी ना उसको ना अपने माँ बाप को देखने का समय है, ना ये करने का समय है। और आजकल लोग कहते हैं कि अरे लड़के लड़कियां शादी करना नहीं चाहते हैं। कैसे करेंगे शादी? जो 9 बजे जिसको जाना है तो वो तो 7 बजे वो अब, और बड़े बड़े शहरों में लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड इस तरह के जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां इवन छोटे जो स्मॉल सिटीज हैं, वहां भी ट्रैफिक का जो हाल है, उसमें 1.5 से 2 घंटे तो उसको जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं। तो 7 बजे घर से निकलेगा और रात के 2 बजे घर पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा? ना उसको आराम मिलेगा, ना उसको ढंग से कोई खाना पीना मिलेगा, तो वो क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? तो ये हमें ही नहीं,
ग्रुप एज ए ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, और इन सबको भी सोचना है, और आपको भी सोचना है कि ऐसे माहौल में हम अपने आप को कैसे फिट करें, और खास तौर से कि हम जो अपने भीतर वो कैसे कॉन्फिडेंस हार्नेस करें, जिस कॉन्फिडेंस के बल पर हम अपना एक नया, जिसे कह सकते हैं कि एक न्यू फेदर ऑन माई कैप, हम उसे लेकर के आ सके और डाल सके। और ये एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर है, उसमें आप कहीं भी नहीं रोक सकते हैं। लाइक अब मैं आपको बताऊं कि थिएटर के फील्ड में ऐसी हुआ, when I got when I fall sick, when I got cancer, that time also it was the same challenge कि whether I have to recover myself or not. आज मैं फिल्में कर रही हूँ, वेब सीरीज कर रही हूँ, वहां भी वो वही सारे चैलेंजेस हैं कि आपको उस चैलेंजेस को मीट करना है या नहीं करना है। एंड व्हेन यू थिंक कि यस आई हैव टू रन, व्हेन यू थिंक आई हैव टू रन, तो चाहे आपके घुटने में कितने भी दर्द हो, आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मैराथन में फर्स्ट आए, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप बेशक सबसे लास्ट रहे, लेकिन आप चले तो, आप 10 डग भी तो चलें, तो जैसे जिससे कि आपको यू विल गेट सेटिस्फैक्शन कि यस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मैराथन। तो लाइफ वही मैराथन है, और उस मैराथन में यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज मैं एक कहानी आपको, कहानी नहीं, एक हकीकत बताती हूँ, बहुत साइंटिफिकली मैं नहीं जानती, बहुत साइंटिफिकली नहीं बताती हूँ, लेकिन एंड डोंट फील awkward or this and that, कि nothing is there. What happens when we are in the process to born in my mother's womb? That time what happens? At the time of consummation, lakhs and lakhs of sperm, they run like marathon. They run towards to get the shelter and mother's womb. और वो जो दौड़ लगाते हैं, उस दौड़ में लोग आरंभ से ही, शुरू से ही मरते जाते हैं, all the sperm dying, and finally 5 to 7 sperm, they get shelter in mother's womb. But there also in 5 to 7 में के बीच में धींगा मुश्ती चलती है, फाइटिंग चलती है, and finally one sperm survive, and that one sperm, with the help of mother's egg, that is me, that is you, that is everyone. तो लाखों को पछाड़ करके आप आए हैं, फिर आप अपने आप को कमजोर मत कहिए। आपके माता पिता ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, कमजोर बना करके पैदा नहीं किया है, और आप सभी के भीतर में एक फीमेल हार्ट है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 months, it's not any miracle, it's not beyond science or anything, it is very scientific. In 9 months we are in my mother's womb. So mother is what? Mother is a female, and mother is a female, so 9 months we are the part of my mom, our mom. So 9 months, at least 9 months, we are a female. So उसके बाद जब जन्म होता है, तो फिर जन्म होने के बाद फिर बायोलॉजिकली तो जो भी है हम वो हैं ही, मेल है, फीमेल है, जो कुछ भी है, बट दैट 9 months इंटैक्टली वी आर अ फीमेल। तो वो फीमेल की वो फीलिंग्स को लेकर के, चाहे वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, डजंट मैटर, आप जब चलते हैं और फिर अपने आप को उस लाखों लाख स्पर्म के बीच में आप सरवाइव करके इस धरती पे आते हैं, तो समझिए कि यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो नाउ इट इज माय ड्यूटी, इज आवर ड्यूटी to fight with other lakhs and lakhs of sperms who are still glaring me, ए यू तू ये, तू ऐसा, तू ऐसी, तू ए, तो ऐसे ऐसे नहीं, वो उनको भी पछाड़ना हमारा काम है। and that is my resolution, and that should be your resolution. I think I'm stopping myself here, and if anybody wants to ask anything or any, then मैम मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे जिस तरीके से आपने हमें समझाया है, आई मस्ट से इट वाज रियली अमेजिंग कि एक एक होता है कि कभी कभार आईना भी दिखाना जरूरी होता है,
कि जिस तरीके से आपने हमें आज आईना दिखाया है कि इट्स नॉट ऑलवेज द फेस, इट्स द इनर सेल्फ ऑफ योर्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। कि हाँ, जहां तक एज यू राइटली सेड कि एक सिर्फ शक्ल ही दिखानी है तो बात अलग है, अदरवाइज व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्किल, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर टैलेंट, every individual in the universe is a unique person, has a lot of potential in himself or herself who has been performing. Thank you so much for that, ma'am. कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास जो I would not take all. First of all, I would like to apologize कि मैं सारे सवाल नहीं लूंगा। कुछ सवाल हैं जिनको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें and let the audience get little flavor what the students are asking. एक स्टूडेंट है, एक पार्टिसिपेंट है जो पूछ रहा है, मैनक रे। Hi ma'am, I am Manak Ray. My question is, in the case of stressful work, many times mind is not right. So how do I keep up my mind right? Go to washroom, sit on commode, close your eyes, and take your fingers in this position and keep it on your knees, whether in this position or in this position. And by the time you get free from your physical need, by the time your mind will also get some calmness and some composed form, and then you come out, wash your face and wipe it out, come have a little water, or if you like to take coffee or anything, but I will not advise that you take more coffee or caffeine. Rather than I will advise कि थोड़ा सा कॉफी लेके फेस पे लगा लो, फेस ज्यादा ग्लो करेगा. But take some water and apply it. I think that you will get some change. Absolutely, ma'am. Thank you so much for that. अगला सवाल शांति कुमारी का है. The next question is from Shanti Kumari. Ma'am, can you discuss some specific activities or practices जो एक इंडिविजुअल कर सकता है to develop a growth mindset? Yeah, one very first thing that एक गाने की लाइन थी बहुत पहले कि दुनिया जाए भाड़ में मुझे क्या पड़ी. तो वहां की you are the world. In Marathi there is very big poet, his name is Kusumagraj, and he has written, I'm speaking in Marathi and then I will explain. He has written one line and believe in that line. तूच आहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार. मतलब तूच आहे मतलब तुम ही हो, you are the only one. तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तुम्हारे अपने जीवन का शिल्पकार, मतलब कि craftsman of your own life. You only are the craftsman of your own life. तो आप अपने लाइफ को कार्व करें और वो उसके बाद छोड़ दीजिए. वो लोग क्या कहते हैं, ये स्टिग्मा से जितनी जल्दी आप बाहर आएंगे उतनी जल्दी आप नॉर्मल हो जाएंगे और उतनी जल्दी आप लोगों से अलग होकर के आप अपने आप को फोकस करेंगे. मैंने यही किया है. नहीं तो अगर ये नहीं होता तो सोचिए ना, मेरे जैसी शक्ल वाली लड़की और या औरत या जो भी कह लीजिए उसका क्या होता. आज मैं यहाँ पे तो नहीं होती आपके सामने आयरी टॉक करते हुए, क्योंकि सब संदीप जी कहते हैं अरे नहीं ये तो दीपिका जैसी नहीं लगती है, तो हेमा मालिनी जैसी नहीं लगती है. Absolutely right, मैम. आपकी एक जिन पंक्तियों को आपने बताया, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि शायद मुझे नहीं पता ये किसने कहा है कि, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. ये जो चीज है जो हर किसी के माइंड में जो चल रही है, अगर इंसान इस एक लाइन को समझना शुरू कर दे तो शायद आई एम श्योर दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो. एग्जैक्टली राइट. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम. बस एक लास्ट और सवाल लेंगे मैम आज के लिए. साक्षी तोमर ने ये पूछा है कि मैम इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने, हाउ डू वी बिकम इमोशनली स्ट्रांग? इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए तो सबसे पहले जरूरी ये है रोना. वी से क्या रे रो नहीं. और स्पेशली आप तो साक्षी हैं तो बाय नेम आई कैन गेस कि यू आर अ गर्ल, तो आपको भी बहुत सुनने को मिलेगा लड़की टसवे बहाने लगती है. और संदीप जी भी रोना चाहेंगे तो कहिए आदमियों के रोते हो. मतलब रोना नेचर ने हमें दिया है, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सर से पांव तक हमें भर के दिया है. तो रोना is a very natural process and very healthy process. When we cry, जब हमारा मन कुछ भारी होता है, जब हम कुछ दुखी होते हैं, तो we want to express. तो आप
रोइए, रोना आ रहा है तो चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, रो लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी के सामने लोग क्या कहेंगे, तो अगेन वॉशरूम, वॉशरूम इज योर टिपिकल वेरी शांति निकेतन चिंतन गृह, तो वो वहां जाइए, रोइए। एंड बिलीव मी, रोने को कमजोरी मत मानिए। अगर आप हंसने को अपना स्ट्रेंथ मानते हैं तो रोने को भी अपना स्ट्रेंथ मानिए, क्योंकि ये दोनों एक सीमेंट और रेत की तरह है, बालू की तरह है। अगर सीमेंट और रेत दोनों नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आपको किसी भी तरह के उसमें किसी गिमिक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हंसी आ रही है तो हंसिए, रुलाई आ रही है तो रो लीजिए। और उसके बाद यस ऑफ कोर्स अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए थोड़ी सी रनिंग हो, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस हो, कुछ नहीं, आजकल तो यूट्यूब भरे हुए हैं अलग अलग 5 मिनट से लेकर के 55 मिनट तक के वर्कआउट से। तो आपको जितना जिस भी तरह की का टाइम आपको मिलता है उस टाइम को आप यूटिलाइज करें, उससे आपका इमोशन भी बहुत ज्यादा कंपोज होगा और कंट्रोल होगा। I just give you right now, just I was practicing, I was directing one of my play, and my female artist, she twice she did, she came and she blasted on the group members, and मैंने बाद में उस समय तो सुन लिया, मैंने सब कुछ कहा, ये कर लिया। बाद में मैंने उनको कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, you should not do or you're not allowed to do। and मैंने कहा कि हाँ, अगर मैं उसमें रहती हूँ, कहा कि नहीं आप होती तो क्या करती, मैंने कहा मैं रहती तो मैं उसको इस तरह से डील करती, उसको ऐसे। कहा कि हाँ आपने तो वैसे ही डील किया, हमने कहा यस दैट्स द वे टू डील। और हमको उसमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा और सीखना होगा कि हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस एंड हाउ टू एक्सप्रेस, टू रिलीज माय इमोशन एट राइट वे, एट राइट टाइम, विथ राइट पर्सन। क्योंकि अगर आज का समय है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, हम यहाँ राजा और हम किसी राजतंत्र में और मोनार्की में नहीं रह रहे हैं। हम चाहे कितना भी कहें, हम कितना भी कहें कि बॉस इज ऑलवेज राइट, बट स्टिल बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रेफर आइटम नंबर 1, वो है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट we are in democratic country, and in democracy so we have full right to express my emotions। अगर मुझे नहीं अगर ये करना है तो हम बता सकते हैं, तो लेकिन हम पोलाइटली भी बता सकते हैं कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल, और हम ले नहीं पॉसिबल है, कुछ भी कर ले। तो कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल, लेकिन ये कुछ चीजें टेक्निक है कि अगर आप रोना चाहते हैं, रुलाई आ रही है रो लीजिए, हंसी आ रही है हंस लीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करने के लिए चाहे योगा अच्छा लगता है योगा कीजिए, डांस अच्छा लगता है डांस कीजिए, गीत गाना अच्छा, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो आप एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। Great, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for that. And I'm sure अगली बार जब भी शांति निकेतन जिंदगी में नाम सुनेंगे तो I'm sure वो विभा मैम को जरूर याद रखेंगे कि शांति निकेतन किसको कहा जाता है in actual life। With all due respect, शांति निकेतन वो टैगोर जी का है, वो I have full respect, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, Absolutely, तो ma'am. इसका कोई उससे कहीं कोई इसका कोई मीम और ये सब नहीं बनना है। वो ये हम लोग बहुत बचपन से, जब मैं 3री 4थी कक्षा में थी तो उस समय से हम लोग बोलते थे। उस समय तो इतने सारे शब्द भी नहीं होते थे, तो चिंतन गृह एंड शांति निकेतन, तो ये ना मन को ना जी बड़ी शांति मिलती है। Absolutely right, ma'am. Thank you so much, ma'am. I would like to express my heartfelt gratitude to you for being with us, and you've been really inspiring for all of us. And I must say that your inspiration is amazing. I must say that a lot of our participants, myself, have been inspired by you today, and I'm sure there are a lot of takeaways which we would love to take it from here. And I would also like to extend my warm gratitude to all the participants who have joined us today, taken the time. And ma'am, आपके busy schedule से फिर भी आपने time निकाला हमारे लिए. It's really amazing. Thank you so much for that. And एक छोटा सा information for all the participants basically, that in case if you have missed out on any topic, any content, anything flow in case, this will be put it on our social media platform. That's the YouTube channel of GIBS.
You can refer that. You can look back for all our previous webinars. And the next webinar, which is scheduled on 24th of February, that's basically on the next IRE talk is on leadership or management lessons from Srimad Bhagavad Gita and Ramayana. Jinko present kare, who's presenting is Master Avi Sharma, who's really young. It's just about almost less than 20 years of age, very young, and bahut sare awards he's been getting it. He's a motivational speaker. He's an author by profession, and PM se unko Bal Puraskar Award and World Book of Record holder he is, and that's on 24th. So I would suggest you to please be there on 24th without missing out. You can connect Viba ma'am. I'll give you the email ID of Viba ma'am so that in case agar aapko ma'am se bhi koi connect karna hai, in case you want to understand more on any of the topics, and I understand ma'am is quite busy in a lot of things, but still I'm sure she will be able to revert your emails also. That's, please make a note. It's AVITOKO. It's avitokobooks@gmail.com. So ma'am is available. Ma'am is basically from Mumbai. Right, in case if you need any assistance, if you need anything, and ma'am is quite popular on the internet. She's quite familiar. She's in next, I would say she is a celebrity. So I'm sure once you check her videos, she's available every platform, I must say. And once again, everyone, thank you so much for joining. Viba ma'am, once again, heartfelt gratitude from the team of GIBS. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you, Sandeep ji, and thank you for inviting me. I know I'm very much busy, but I love to take my time and come in front of students, youngsters, because youngsters, they are my energy. I get energy from them. तो इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया और इनके साथ आने के, जैसे कहा मैंने पहले ही कहा ना कि if you want to get work done, give it to the busiest person. तो आप जब भी हमें बुलाएंगे मुझे अच्छा लगेगा आने में, and हम जरूर चाहेंगे कि आप GIBS आइए, एंड एक बार आइए तो हमें मौका मिले कि आपको पर्सनली मिलने का. So anytime you're there in Bangalore, you're most welcome. Please do visit us. Anytime, हम तो हमेशा कहते जोगी बहता पानी, whoever calls me, I go and reach there and give them to my service. So anytime I would be very happy to meet all you people in person. And really, I'm also very thankful that you have invited me, and you had given me an opportunity to express my journey among the people. And really, I'm very happy and satisfied. And I hope that you all might have liked my session and my interaction. And okay, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, वक्त चाहेगा तो. Zarur, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you so much. A very good evening once again, and please do take care of yourself. See you soon again in the next IRE talks. Thank you. Thank you. Thank you.